کے آغاز میں آپ کو بتائیں وزیر اعظم نے عالمی مالیاتی ادارے IMF سے مہلت مانگ لی ہے۔ جنیوا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباز شریف بولے، انہوں نے IMF سے کہا ہے رحم دلی دکھائیں، پاکستان کو سانس لینے کا موقع دیں۔ سیلاب زدہ پاکستان مشکل میں ہے، غریب عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈالنا غیر انسانی عمل ہوگا۔ پاکستان IMF کی سخت شرائط پر عمل کرے گا لیکن کچھ وقت دیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ IMF کو مسلسل قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یقین ہے کہ ایک دن انہیں منطق اور حقائق سے قائل کر لیں گے۔ وزیر اعظم کا سیلاب متاثرین کے لیے عالمی برادری کے تعاون پر اظہار تشکر، کہا شفافیت پہلی ترجیح ہے، عالمی امداد کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروائیں گے۔ Today, while we are complying with IMF conditionalities as best as possible, we are committed to IMF's program. We will do everything to comply with their terms and conditions, although I am constantly trying to persuade them that please give us a pause. I spoke to the managing director. I said, you are a wonderful person, wonderful human being. You have a heart of a gem, and you know the plight of poor people in developing countries. عالمی برادری نے مشکل وقت میں پاکستان کا ہاتھ تھام لیا۔ پاکستان کے جنیوا میں ہونے والی عالمی ڈونرز کانفرنس میں بڑی کامیابی، سیلاب متاثرین کے لیے $10.5 ارب سے زائد امداد کا اعلان کر دیا۔ اسلامی ترقیاتی بینک نے پاکستان کو $4.20 ارب، ورلڈ بینک سیلاب متاثرہ علاقوں کو تعمیر نو پر $2 ارب، جبکہ سعودی عرب پاکستان کو $1 ارب دے گا۔ چین پاکستان کو $10 کروڑ کی معاونت فراہم کرے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے پاکستان کو $100 ملین امداد دینے کا اعلان کیا۔ فرانس، یورپی یونین، جرمنی اور جاپان سے بھی پاکستان کو امداد ملے گی۔ جنیوا کانفرنس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ بدترین سیلاب سے بدترین تباہی، متاثرین کی بحالی کے لیے عالمی برادری نے پاکستان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جنیوا ڈونرز کانفرنس میں عالمی برادری اور اداروں کی جانب سے اربوں ڈالر کے وعدے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے امدادی اعلانات کی تفصیلات جاری کر دیں۔ مریم اورنگزیب نے بتایا کہ پہلے سیشن میں پاکستان کے لیے مجموعی طور پر $8 ارب 57 کروڑ کے وعدے کیے گئے۔ اسلامی ترقیاتی بینک نے $4 ارب 20 کروڑ دینے کا اعلان کیا، جبکہ ورلڈ بینک کی طرف سے پاکستان کے لیے $2 ارب کا وعدہ ہوا۔ کانفرنس میں ایشیائی ترقیاتی بینک نے $1.5 ارب دینے کا اعلان کر دیا۔ یورپی یونین نے $9 کروڑ 30 لاکھ امداد کی شکل میں دینے ہیں، جبکہ جرمنی $8 کروڑ 80 لاکھ دے گا۔ وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ چین کی جانب سے $10 کروڑ کا اعلان ہوا۔ جاپان نے پاکستان کے لیے $7 کروڑ 70 لاکھ امداد دینی ہے۔ USAID نے $10 کروڑ اور فرانس نے $34 کروڑ 50 لاکھ کا وعدہ کیا۔ مریم اورنگزیب نے ٹویٹ میں بتایا کہ کانفرنس کے دوسرے مرحلے میں ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے $1 ارب، جبکہ برادر ملک سعودی عرب نے بھی $1 ارب امداد کا اعلان کیا ہے۔ مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کرنے والے ممالک کے شکر گزار ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہ کاری کا حجم بہت بڑا ہے، بحالی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا سیلاب سے زراعت، لائیو سٹاک اور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا، بحالی کے لیے لگائے گئے تخمینہ میں سے 50% پاکستان اپنے وسائل سے خرچ کرے گا۔ سیلاب سے 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا ڈونرز کانفرنس کے افتتاحی سیشن سے خطاب، کہتے ہیں مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کرنے والے ممالک کے شکر گزار ہیں۔ When the rains finally stopped, a 100-kilometer lake formed in the middle of our country. 1 in 7 Pakistanis were affected by this natural disaster. That's 33 million people. وزیر موسمیاتی تبدیلی شیر رحمان کا کہنا ہے سیلاب سے پاکستان کے 2 صوبوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ بعض علاقوں میں ابھی تک لوگ اپنے گھروں میں آباد نہیں ہو سکے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا حالیہ سیلاب نے معیشت کو بری طرح متاثر کیا، بحالی کے اقدامات کے لیے $16.3 بلین کی ضرورت ہے۔ متاثرہ آخری شخص کی بحالی تک کوششیں جاری رکھیں گے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا سیلاب متاثرین امداد کے منتظر ہیں، پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے خطرناک تجربے سے گزرا۔ وزیر اعظم کا 2 روزہ دورہ جنیوا، شہباز شریف کی ورلڈ بینک ایشیا ریجن کے نائب صدر اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے نائب صدر سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے پاکستان میں حالیہ سیلاب کی وجہ سے بڑے پیمانے پر تباہی اور حکومت کے سیلاب زدگان کی مدد اور بحالی کے لیے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ شہباز شریف نے ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک کا سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے امداد پر شکریہ ادا کیا۔ دنیا نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے $10 ارب سے زائد امداد کا اعلان کیا ہے۔
आर्मी चीफ का दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात सिपह सलार की यूएई के सदर से मुलाकात हुई। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने जनरल आसिम मुनीर को फ़ौज का सरबराह बनने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में पाक यूएई दिफाई और अस्करी अमूर में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान से वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही की मुलाकात, एतमाद का वोट लेने समेत सियासी और हुकूमती अमूर पर मुशावरत। इमरान खान ने कहा, हवस इक़्तिदार में अंधे हुक्मरान महंगाई का तूफ़ान लेकर आए हैं। पंजाब हुकूमत मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। मईशत को संभालने के दावेदार आज खुद गयार के पाँव में गिरे हुए हैं। लाओ लश्कर समेत जिनेवा जाकर भीख मांगते, इन्हें शर्म आनी चाहिए। वज़ीर-ए-आला परवेज़ इलाही ने कहा, इमरान खान हमारे लीडर हैं, हर फैसले में साथ खड़े रहेंगे। हमारा इत्तेहाद पहले से ज़्यादा मजबूत है। इमरान खान ने मुखालिफिन की सियासत को ज़ीरो कर दिया। 13 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमती इत्तेहाद भिखारियों का टोला बन चुका है। पंजाब असम्बली का एक और इजलास हंगामा आराई की नज़र। एतमाद का वोट न लेने पर अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह और अता तारड़ भी मेहमान गैलरी में मौजूद रहे। हुकूमती बेंचेस ने राना सनाउल्लाह और लीगी क़यादत के खिलाफ जवाबी नारेबाजी की। अपोजिशन अरकान एजेंडे की कॉपियों के कागज़ के जहाज़ बनाकर ऐवान में उड़ाते रहे। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर फिर होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब के पास अरकान की तादाद पूरी नहीं, इसलिए तहरीक दम-ए-एतमाद से भाग रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है, हमारे पास 189 अरकान हैं। परवेज़ इलाही जल्द वज़ीर-ए-आला नहीं रहेंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, वज़ीर-ए-आला ने एतमाद का वोट ना लिया तो अदालत जाएंगे। ख्वाजा आसिफ बोले, PTI के पास अरकान पूरे हैं तो एतमाद का वोट क्यों नहीं ले रहे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने चीफ जस्टिस से सियासी फ़ैसलों से इजतनाब करने का मुतालबा कर दिया। हमारे आज भी 179 मेंबर जो है वो पूरे थे। चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो अब चीफ मिनिस्टर नहीं है इस सूबा के। गवर्नर साहब ने वज़ीर आला साहब को कहा कि आप एतमाद का वोट लें अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वो एतमाद का वोट डिले कर रहे हैं। हमारी दानिश्त में और हमारे समझने में और हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक उनके पास 186 मेंबर्स नहीं है। आज भी हम डिमांड करेंगे फ्लोर पे कि वो एतमाद का वोट लें, अदरवाइज़ फिर कोर्ट में हम जाएंगे और वहाँ जाके हम ज़ाहिरा डिमांड करेंगे कि जी इन्होंने एतमाद का वोट नहीं दिया। अगर उनके पास वोट पूरे हैं तो क्यों नहीं एतमाद का वोट लेंगे। मैं तो सियासी बात कर रहा हूँ, वोट का एतमाद का वोट लें। अगर उनके पल्ले वोट हैं तो क्यों नहीं ले रहे तो एतमाद का वोट। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इमरान खान किस सियासी इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शरजील मेमन कहते हैं, सियासी इंजीनियरिंग और धांधली की पैदावार इमरान खान की सारी सियासत झूठ पर मबनी है। खूनी इनकलाब की बातें करने वाला अब खूनी इलेक्शन चाहता है। PTI के साहब जिन्होंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो क्या फरमा रहे थे, धांधली होगी, फलाना चीज़ें होगी, और उन्होंने कहा कि जी खूनी इलेक्शन होंगे। पहली बात, खूनी मार्च करने की उन्होंने कोशिश की और उन्होंने खून खराबा करके दिखाया, मासूम लोगों की जानें ली। इनकी बुनियाद झूठ, फरेब और धांधली की पैदावार ये लोग, ये मसनूई सियासतदान जो हमारे मुल्क में थोपे गए गैर सियासी लोग थे। ये अगर खुदा न खास्ता कराची में किसी भी किस्म की कोई चीज हुई तो जिस साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा। अब वही जमात इस्लामी 2 दफा इनका मेयर बन चुका है कराची के लिए, कराची में 2 दफा। मुझे एक कोई मेगा स्कीम बता दे जो जमात इस्लामी को दो टेन्योर मिले कराची में मेयर के, उन्होंने कोई बहुत बड़ा एक कोई काम कारनामा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 15 जनवरी को ही होगा। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से MQM की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जमात इस्लामी की मंजूरी कर ली गई है। उधर सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन रोकने के लिए MQM की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से MQM की दरखास्त मुस्तरद, जमात इस्लामी की मंजूर कर ली। हुक्म में कहा कि कराची, हैदराबाद और ठट्ठा में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को पुरानी वोटर लिस्टों पर ही होंगे। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध इलेक्शन के इनेकाद के लिए इक़दाम करें।
उधर सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन रोकने के लिए MQM की हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने से मुताल्लिक काबीना के मीटिंग मिनट्स और समरी तलब कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इस शहर के मसाइल का हल किसी भी हुकूमत की तरजीह नहीं, सड़कें और गलियां बनाना पार्लियामेंट नहीं, लोकल गवर्नमेंट का काम है। वफाकी हुकूमत 19 जनवरी तक यूनियन काउंसिल की तादाद में इजाफे की ठोस वजूहात बताए। अहम खबर आपको दें, कराची से लाहौर जाने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। ट्रेन की एक बोगी रोहड़ी स्टेशन के नज़दीक ट्रैक से उतर गई। अब ट्रैक बंद है, ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। रेलवे हुकाम की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अपडेट करें आपको, रेलवे का अमला मौका पर मौजूद है और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। लाहौर से कराची जाने वाली ये ट्रेन रोहड़ी स्टेशन के करीब एक बोगी जो है वो ट्रैक से उतर गई, जिसकी वजह से अब ट्रैक को बंद कर दिया गया है। मुल्क भर में आटे के बहरान से अवाम परेशान है। कराची से खैबर तक हर तरफ आटा दो की सदाएं हैं। महंगा आटा खरीदने की सकत ना रखने वाले शहरी सस्ते आटे के ट्रक्स के पीछे ख्वार हो रहे हैं। दिन भर इंतजार के बाद भी शाम को खाली हाथ लौटना पड़ता है। आटे की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। कई शहरों में आटे की कीमत 150 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी। आटा महंगा और नायाब, दो वक्त की रोटी बन गई ख्वाब। सस्ते आटे के पीछे ख्वार शहरियों के सब्र का पैमाना छलक पड़ा। कोयटा और बनू समेत मुतादिद इलाकों में खवातीन सड़कों पर निकल आईं। कोयटा में मुजाहिरीन ने धरना देकर जरगून रोड ब्लॉक कर दी। बनू में भी खवातीन का एहतजाज, सड़क ब्लॉक किए रखी। मालाकंड में भी खवातीन सड़कों पर निकली, मेन शाहराह बंद करके इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। लाड़काना समेत सिंध के कई शहरों में भी एहतजाज। पेशावर में आटे की कीमत में बड़ा इजाफा, 20 किलो का थैला 3300 रुपए का हो गया। शहरियों ने सोई हुकूमत से जागने और कीमतों में इजाफा रोकने की अपील कर दी। रूस से हुकूमती सतह पर मंगवाई जाने वाली गंदम की पहली खेप कराची पहुंच गई। रूस से 58,200 मीट्रिक टन गंदम लेकर आने वाला जहाज़ आज रात को कराची बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। रूस से मजमूई तौर पर 7.5 लाख टन गंदम दरामद की जाएगी। दरामद की जाने वाली बकिया गंदम बजरिया गवादर पाकिस्तान पहुँचेगी। गंदम के तमाम जहाज़ 30 मार्च तक पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। बढ़ती महंगाई और मईशत की बिगड़ती सूरत हाल पर हुकूमत ने PTI हुकूमत को मुआशरी ज़वाल की रिपोर्ट जारी कर दी। 2017-18 के मुकाबले में 2021-22 में तजारती खसारा 28% बढ़ा। इसी अरसे में डॉलर की कदर 83 रुपये फ़ी डॉलर बढ़ गई और बेरोज़गारी की शरह में 0.5% इजाफा हुआ। मुल्क में मुआशी ज़वाल का आगाज कब हुआ? मौजूदा हुकूमत ने PTI के 3.5 साला दौर का मुआशी चार्ट शाये कर दिया। 2017-18 के मुकाबले में 2021-22 में मुआशी सूरत हाल क्या है, हुकूमत ने सब बता दिया। GDP की औसत शरह नमो 2.2% कम हुई। GDP के तनासुब से माली खसारा 2% बढ़ा। ज़रूरी टैक्स में इजाफे की शरह 128% कम हुई। टैक्स महसूलात GDP के तनासुब से कम हुए। फीकस आमदन में इजाफे की शरह 13.4% कम हुई। इसी तरह महंगाई की शरह भी 6.5% तक बढ़ गई। जून 2018 की निस्बत मार्च 2022 में मुल्की कर्जों का बोझ 80% तक बढ़ गया। मुल्की दरामदात 30% इजाफे से 55.7 बिलियन डॉलर से बढ़कर 72.2 बिलियन डॉलर तक बढ़ गई। 2016 में 12 कहू की आबादी के लिए माँ बच्चा अस्पताल का प्रोजेक्ट मंजूर किया गया। 65 बेड्स पर मुश्तमिल ये अस्पताल वहाँ के गरीब आवाम के लिए सहूलत का बेहतरीन जरिया बन सकता था, लेकिन कई साल गुजरने के बावजूद भी यहाँ के लोगों की किस्मत ना जागी। रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। खंडर नुमा इमारत, 6 कनाल अराजी पर मुहित माँ बच्चा अस्पताल। कई साल गुजर गए लेकिन ये अस्पताल मुकम्मल ना हो सका। 12 कहू की आबादी के लिए 65 बिस्तरों पर मुश्तमिल बनने वाला ये अस्पताल खवातीन की सहूलत के लिए था। 12 कहू के रिहायशी भी अस्पताल बनने के मुंतजिर नजर आए। कहते हैं कि अगर ये अस्पताल जल्द मुकम्मल हो जाए तो घर की दहलीज पर खवातीन को सहूलत मिलेगी। यहाँ से फिर ये लोग हमें कम्प्लेक्स रेफर करते हैं। पॉलीक्लिनिक वाले तो लेते ही नहीं है, वो कहते हैं कम्प्लेक्स जाएं। वहाँ पे भी गरीब लोगों को बहुत चक्कर लगवाते हैं। हम यही कहेंगे कि अगर ये बन जाए तो बहुत अच्छी सहूलत हो जाएगी लेडीज के लिए। कई वजीर आए और कई घर को चले गए, लेकिन अस्पताल का तामीर
तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार रहा। वजह पूछने पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जेगम ज़िया ने बताया कि पहले फंडिंग का मसला दरपेश रहा, लेकिन अब उम्मीद है कि ये अस्पताल अक्टूबर 2023 में मुकम्मल हो जाएगा। कई साल गुजर गए लेकिन माँ बच्चा अस्पताल की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। बाराको के मकीन जल्द अज जल्द इस अस्पताल की तकमील के मुंतजिर हैं। कैमरामैन मोहम्मद इबाद के साथ आयशा शुएब, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध छा गई है। दिन का इंतहाई कम होने से रास्ते गुम, मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैज़पुर से रजाना और मोटरवे M2 लाहौर से सियाल मोड़ तक बंद कर दी गई। मोटरवे बाबू साबू और ठोकर नियाज बेग पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर हजरात को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। लाहौर की सख्त सर्दी में भी बच्चे स्कूल जाने लगे। धुंध और स्मोक से परेशान वालिदैन ने हुकूमत से मज़ीद छुट्टियों की अपील की है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं अरसलान हैदर। जी बिल्कुल, शदीद धुंध और स्मोक के दौरान स्कूल जो हैं वो तो खुल गए हैं, लेकिन इस वक्त वालिदैन और बच्चे परेशान हैं कि किस तरह से स्कूल के जो ये औकातकार हैं इनमें जो है वो स्कूल जाया जा सके। पेरेंट्स हमारे साथ खड़े हुए हैं, पेरेंट्स से भी जानते हैं सर। ऐसे मौसम है ना, इनको छुट्टियाँ देनी चाहिए क्योंकि बहुत सर्दी है, स्कूलों के कमरों में बहुत सर्दी होती है, वो बच्चे बीमार हो रहे हैं, स्मोक है, ऊपर ये धुंध इतनी है, छुट्टियाँ बढ़ा दें 5 या 10 जब तक ये मौसम ऐसा है। जी देखिए, वालिदैन की जानिब से कहा जा रहा है कि ना सिर्फ बाहर जो है स्कूल से ठंड है, बल्कि क्लास रूम्स के अंदर भी बच्चे जो हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। और इसके साथ सुबह 8 बजे के औकात का रखे गए हैं, 8:15 बजे के स्कूलों के औकात का रखे गए हैं और दोपहर में जो टाइम है वो बढ़ाया गया, लेकिन इससे बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। स्मोक से और इस ठंड से बचने का यही अभी जो है वो हल देखने में आ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो धुंध की भी जो है वो इंतहाई कम है। और यही अपील है गवर्नमेंट से, वालिदैन कह रहे कि जो छुट्टियाँ थी इन्हें या तो बढ़ा दिया जाए या औकात कार को तब्दील किया जाए। जी, फैसलाबाद में स्मोग और धुंध ने डेरे डाल रखे हैं, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदा जवेरिया नज़ीर। आपको बता रहे हैं कि पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज है और फैसलाबाद में भी यही हाल है, जिसने शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे जवेरिया नज़ीर से। जी जवेरिया। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी सर्दी की आमद के साथ ही सुबह सवेरे सड़कें और शाहराएं जो हैं वो धुंध की सफ़ेद चादर ओढ़ लेती हैं। आज का अगर मौसम की बात की जाए तो आज भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। शहर के तमाम इलाकों में जो है वो धुंध शदीद छाई हुई है। ना सिर्फ शहरियों को जो है वो आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दूसरी जानिब स्कूल कॉलेजेस जाने वाले जो बच्चे हैं वो भी मुश्किलात से दो चार हैं। ट्रैफिक के बहाव में रवानी जो है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, उसके साथ साथ जो है वो ट्रैफिक हादसा भी बढ़ गए हैं। अगर इस वक्त दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज का जो दर्जा हरारत है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जबकि तमाम सड़कें और शाहराएं जो है वो धुंध की लपेट में है। शहरी जो है वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो शहरियों को गाहे जो है वो आगाही भी दी जाती है कि वो अपने आमदोरफ्त को थोड़ा कम स्पीड से चलाएं ताकि हादसा से जो है वो महफूज रहा जा सके। दीरबाला के सयाहती इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ों ने रुई के कालों की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सयाह बर्फबारी से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे। सयाह बर्फबारी में हल्ला गुल्ला और मौज मस्तियाँ करते नजर आ रहे हैं। कराची के इलाके को रंगी से मुबैना तौर पर 2 कम उम्र लड़कियों के अगवा का ड्रॉप सीन दोनों लाहौर से मिल गई। पुलिस ने हिफाजती तहवील में ले लिया। दोनों सहेलियाँ कोरिया के म्यूज़िकल बैंड से जुनून की हद तक मुतासर और कोरिया जाना चाहती थीं। वो मामला क्या है, इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदा तैमूर शकील से। तैमूर, बताइएगा। देखिए, कराची के इलाके कोरंगी नंबर 2 से 7 जनवरी को लापता होने वाली दोनों सहेलियां जो हैं वो लाहौर से जो है वो मिल चुकी हैं। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक दौरान तफ्तीश इन सहेलियों ने जो है वो सनसनीखेज इंकशाफात भी किए हैं। दोनों सहेलियां मंसूबा बंदी के साथ जो है वो घर से निकली थी। दोनों जो है वो एक म्यूजिकल बैंड है कोरिया का जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है जवानों में, तो उनको जो है वो बेहद पसंद करती हैं और कोरिया जाना चाहती हैं। कोरिया कैसे जाएंगी, इनके सामने बड़े मसाइल थे। तो इन्होंने जो है एक पर्चा बनाया जिसके ऊपर बस के किराए, ट्रेन के किराए, साथ ही साथ फ्लाइट और दीगर मालूमात जो है उस पर्चे पे लिखी।
تاکہ ان کو سفر کرنے میں آسانی ہو، یہاں تک کہ کون جی پوری پلاننگ کے تحت یہ گھر سے نکلی تھی. بہت شکریہ تیمور، آپ نے اپڈیٹ کیا. لیاقت پور محکمہ زراعت پنجاب نے کھاد حساب موبائل ایپ کا اجرا کر دیا. فصلوں کی بھرپور پیداوار کے حصول کے لیے کھادوں کا متوازن استعمال مٹی کے لیبارٹری تجزیے کی روشنی میں نہایت ضروری ہے. اس سلسلے میں پیش ہے معروف انور کی لیاقت کی رپورٹ. لیاقت پور میں محکمہ زراعت پنجاب نے کھاد حساب موبائل ایپ متعارف کرا دی، جس سے متوازن کھادوں کے استعمال کو فروغ ملے گا. تحقیق سے ثابت ہوا ہے ہر کھاد ایک خاص کام کرتی ہے. نائٹروجن کھادیں فصل کے قد میں اضافہ کرتی ہیں، فاسفورسی کھادیں پودوں کی جڑوں کو بڑھاتی اور مضبوط کرتی ہیں، پوٹاش کھادیں پودوں کو صحت مند اور بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہیں. کھادوں کے متوازن استعمال سے فصل پانی کی کمی اور کوڑے کے مضر اثرات سے بھی محفوظ رہتی ہے. محکمہ زراعت پنجاب کی جاری کردہ کھاد حساب موبائل ایپ کاشتکاروں کو دستیاب رقم کے مطابق 44 فصلوں کے لیے متوازن کھادوں کے استعمال میں رہنمائی فراہم کرتی ہے اور کھادوں کے تعین سے کاشتکاروں کی رقم ضائع نہیں ہوتی. کھاد حساب موبائل ایپ سے کاشتکار اپنے بجٹ کے مطابق نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش کھادوں کا حساب لگانے کے بعد ان کے متوازن استعمال سے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کر سکیں گے. کیمرامین محسن شاہ کے ساتھ معروف انور، نیو نیوز، لیاقت پور. کراچی میں سندھ حکومت کی جانب سے پہلا وائلڈ لائف میوزیم شہریوں کے لیے کھول دیا گیا. میوزیم میں 500 سے زائد سندھ میں پائے جانے والے جانور اور پرندوں کی تصاویر حنوط کر کے رکھی گئی ہیں. تفصیلات شفقت عزیز کی رپورٹ میں. کراچی میں دین محمد وفائی روڈ پر واقع سندھ وائلڈ لائف میوزیم شہریوں کے لیے مفت کھول دیا گیا. میوزیم میں اڑنے والے 350 اقسام کے پرندے، 102 رینگنے والے، 80 ممالیہ جانوروں کی مختلف اقسام حنوط شدہ حالت اور تصویری شکل میں رکھی گئی ہیں. میوزیم میں سندھ کا آئی بیکس، اڑیال اور ویل مچھلی کی ہڈیوں سمیت دیگر جانوروں کو خاص کیمیکل کے ذریعے 30 سال تک محفوظ کیا گیا ہے. تقریباً 350 برڈز کی اقسام جو ہیں وہ ہمارے سندھ وائلڈ لائف کی جو ہیں اس میں پائی جاتی ہے سندھ میں، اور اس کے علاوہ 80 میملز ہیں، اور اس کے علاوہ 105 جو ہیں وہ ریپٹائلز وغیرہ ہیں. سندھ وائلڈ لائف کے ایڈمن کنزرویٹو ممتاز سمرو کے مطابق میوزیم لگ بھگ 25 سال تک بند رہا. تقریباً پچھلے 25 سال سے یہ میوزیم ہمارا بالکل ایسی حالت میں تھا، اگر آپ یہاں پر آتے تو ایسے لگتا کہ جیسے کوئی ایک بہت بڑا بھنڈار خانہ ہے. میوزیم میں کئی معدوم ہونے والے جانور بھی رکھے گئے ہیں. انتظامیہ کے مطابق میوزیم کو قائم کرنے کی اہم وجہ شائقین اور بالخصوص طلبہ و طالبات کو معلومات فراہم کرنا ہے. کیمرامین جمشید علی کے ساتھ شفقت عزیز، نیو نیوز، کراچی. کٹھن حالات اور مجبوریوں نے ملتان کی باہمت ماہین کو موٹر سائیکل مکینک بننے پر مجبور کر دیا. ماہین دن بھر موٹر سائیکل بنانے میں مگن رہتی ہیں. رپورٹ کریں گے ملتان سے نمائندہ نیو ماجد کلاسرا. لڑکیاں لڑکوں سے کم نہیں ہوتی، یہ ثابت کیا ملتان کی رہائشی ماہین نے، جسے گھر کی ذمہ داریوں نے موٹر سائیکل مکینک بنا دیا. استاد کے پاس آ کے میں نے کام سیکھنے کا ان سے کہا تو انہوں نے کہا مشکل ہے، تم نہیں کر سکو گی، لڑکی ہو. تو میں نے ان سے کہا مجھے سکھائیں، موقع دیں، میں کروں گی. صنف نازک گھنٹوں نفیس پاؤں پر کھڑی ہو کر موٹر سائیکل مرمت کا کام کرتی ہیں. کامیابی کا جنون اسے تھکنے نہیں دیتا. استاد بھی ان کے کام سے خوش ہیں. بچے آئی ہے کام کے لیے، میں نے ان سے پوچھا کہ بھی لڑکیوں کا کام نہیں ہے، یہ تو ہارڈ ورک ہے. انہوں نے کہا سر یہ میں کر لوں گی. حالات کی سختیوں نے سجنے سورنے کے خوابوں کو چکنا چور کیا. پیٹ کی بھوک نے مہندی لگانے اور چوڑیاں پہننے والے ہاتھوں کو اوزار اٹھانے پر مجبور کیا. 25 سالہ ماہین نے موٹر سائیکل مکینک کا کام سیکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ محنت اور لگن سچی ہو تو کوئی کام مشکل نہیں ہوتا. کیمرامین کاشف نواز کے ساتھ ماجد کلاسرا، نیو نیوز، ملتان. کھانوں کے شوقین افراد کے لیے انواع و اقسام کے کھانوں سے مزین 3 روزہ کراچی ایٹ فیسٹیول اختتام پذیر. ایٹ فیسٹیول کے 10ویں ایڈیشن میں مزے کے کھانوں سے شہری لطف اندوز ہوتے رہے. ساحل سمندر پر مزیدار پکوانوں کی خوشبوؤں سے مہکتا کراچی ایٹ فیسٹیول اپنے انجام کو پہنچا. سرد موسم کی پرواہ کیے بغیر فیسٹیول میں آخری روز بھی شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ایٹ
ईट फेस्टिवल में तकरीबन 150 से जायद मुनफरिद खानों के स्टॉल लगाए गए, जिनमें कराची के अलावा दीगर शहरों के मशहूर रेस्टोरेंट्स ने भी शिरकत की। इटालियन, चाइनीज, थाई, अमेरिकन और टर्किश समेत देसी खानों से शहरियों का पेट तो भरा लेकिन जी ना भरा। मुंतजमीन का कहना था ऐसे मेले सस्ते रहने चाहिए ताकि खुश खुराक अफराद लुत्फ अंदोज होते रहें। दूसरी जानिब कराची ईट फेस्टिवल के आखिरी रोज शदीद बदनज़मी, शहरी दरवाजा तोड़कर दाखिल हो गए, ऑर्गेनाइजर्स बेबस नजर आए, लड़कियां आपस में गुत्थम गुत्था हो गईं। लड़कियों ने एक दूसरे को बाल पकड़कर पटखा और एक दूसरे को लाते और घूंसे मारे। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें न्यू न्यूज़।